Hey folks, Saksham this side from ACE IPM. A lot of you would already know IIM Sirmaur has launched its BMS program and that is starting from this year itself, which is a very good news for everybody preparing for IPM because now you have one more IIM that you can target right after your 12th class. We were waiting to post this video, although this program has been announced in the last 4, 5, 6 days and a lot of videos have already popped up. But because on their own website, the information was half-baked, सारी चीज़ें available नहीं थी, so we decided to hold back this video. But now that the website is updated with all the information, now we are in a position to tell you everything about this program, right from the college to the course to the selection criteria, and also more importantly, what do I think are the positives about this course, the negatives about this course, and most importantly, the verdict whether should you be taking up this course or not, because a lot of you would already be in a college, and in that case should you be switching from that particular college to this one is a question that a lot of you need an answer to. So in that case we are going to discuss all those questions right away. So without any further ado, let's begin. So first of all, let's just understand about this institute. Of course, IIM Sirmaur is situated in Sirmaur, which is situated in Himachal Pradesh. Himachal Pradesh में है, तो of course it is a hilly terrain. The scenes, the views over there are going to be breathtaking, which is also the case with IIM Jammu. Jammu से बात चली है तो it is a college which is in the same league as IIM Jammu and Bodh Gaya. It is a baby IIM which was started in the year 2015. And अगर आप देखेंगे baby IIMs 2015-16 के बीच में जितने भी IIMs चालू हुए हैं, they are all considered to be baby IIMs. न्यू IIMs में आपके IIM रोहतक रांची आता है, एंड ओल्ड IIMs में आपका ऑफ कोर्स IIM ABC आता है, इंदौर आता है, कोड़ीकोड आता है, एंड लखनऊ आता है. सो दैट इज़ हाउ द इंटायर सिस्टम इज़ लाइक इन टर्म्स ऑफ द नेमिंग कन्वेंशन. परमानेंट कैंपस काफ़ी लोग पूछ रहे थे. परमानेंट कैंपस येस, द फेज 1 इज़ रेडी फॉर IIM Sirmaur. As per their post on social media handles, which I saw, which were of about 2 months back, they are planning, or they might have shifted their this year's MBA batch to the permanent campus itself. I'm not sure about that, but that is what the social media handles said. At the same time, as per the program information, जो आप लोगों का प्रोग्राम होगा BMS, that will start in the old campus only, which is the temporary campus. मे बी बिकॉज कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ है, क्लासेस इतनी नहीं हैं, इतनी सारे हॉस्टल बेड्स नहीं हैं, विच इज़ वाई करंटली इट इज़ गोइंग टू बी इन द टेम्प्रेरी कैंपस. मे बी इन फ्यूचर जब कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेसेस, दे मे ओपन इट अप टू द BMS स्टूडेंट्स एज वेल. सो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी लाइक. Now in terms of the course overview, not the college overview, आपका program is starting this year, and because it is starting this year and it is starting very late, a lot of things had, the decisions that were taken by the administration are taken in a way to account for the shortage of time. So if you are watching this video at any point in future, the information is most probably going to be updated and amended for 2025 and beyond. तो उसके लिए हम updated video लेकर आएंगे. But for this year, the intake is of 120 students. There are multiple exit options as per the new education policy, and that would mean कि you can exit after first year, second year, third year, or fourth year as well. Total 4-year का program है, and it is not a 3-year program. It's not a regular BMS program. Because it conforms to the new education policy. It follows a semester system. Although IIM Indore, Ranchi, Rohtak की बात करें, they follow a trimester system. But Bodh Gaya, Jammu and Sirmaur as well is going to follow a semester system wherein you have 2 terms in a year. The curriculum, of course, is very much inspired by IPM, so it has a mix of everything. It's not just a traditional BMS, so to say. वो सारे liberal arts के component और मैथमेटिक्स, स्टैट्स, वो सारी चीज़ें भी इस प्रोग्राम में अच्छे से डाली हुई है. सो इन टर्म्स ऑफ करिकुलम इट्स नॉट एक्जैक्टली द सेम एज IPM, बट इट फॉलोज द सेम पैटर्न, द सेम ट्रेंड. The highlight about this program is that there's also an international exchange at the 6th semester, which is your end of 3rd year, or an industry internship. You can do one of the two. That's a good thing because even a college like IIM Rohtak, उसमें आपका IPM के अंदर कोई international exchange नहीं होता, but if IIM Sirmaur is able to provide that, that's a very good thing. Then you also have an option of direct entry to MBA if you have 8+ CGPA in your undergrad. तो अगर आपका 4 साल में 8+ CGPA आता है तो in that case आप direct IIM Sirmaur से MBA कर सकते हैं. You can make it an IPM without having to give CAT. But in that case this IPM is different from the rest because one, आपका CGPA requirement काफ़ी ज़्यादा है, and second is that it is not going to be a 5-year program but rather a 6-year program. इसके बारे में हम आगे भी डिस्कशन करेंगे. In terms of important dates, एप्लीकेशन डेडलाइन इज़ 23rd of August. उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट 24th तक आ जाएंगे. 24th से ही आपका इंटरव्यू चालू हो जाएगा. सो 24th, 25th एंड 26th आपका इंटरव्यू चलेगा एंड रिजल्ट 28th में आ जाएगा. इट इज़ अ वेरी एक्सपेडाइटेड प्रोसेस बिकॉज ऑफ कोर्स
not a lot of time is left because already colleges चालू हो गए हैं, सारे IIMs चालू हो गए हैं. So in that case they had to speed it up. So that is how the things the process is going to be like. The program is supposed to commence in the month of September. That is what the website and the pamphlet has mentioned. Now in terms of applying, आप website पे जाएंगे, there is an apply now button available. आपको एक Google form का link मिलेगा which you can fill it up. एंड गूगल फॉर्म में आपको काफ़ी सारी चीज़ें अपनी बतानी होगी. मेजरली आपका 10th और 12th होगा जिसके बेस पे आपका शॉर्ट लिस्ट आने वाला है. साथ में उन्होंने आपको CV अपलोड करने के लिए भी बोला है. अ लॉट ऑफ यू वर वंडरिंग कि भाई CV कैसे बनाएं, क्या करें क्या नहीं करें. व्हाट आई डू इज़ ASIPM में हमने जो भी IIM रांची, इंदौर, रोहतक के लिए इंटरव्यू वर्कशॉप्स ली थी जिसमें CV बिल्डिंग के भी एक वर्कशॉप था. I will make that entire paid module freely available on our website for the next for the remainder of this month. तब तक आपके interviews complete हो जाएंगे. So you can refer to that and make your CV and prepare for the interviews as well. We will not be doing any interview preparation module for this particular college. Reason being अभी के टाइम पे इतना टाइम बचा ही नहीं है. आपको shortlist 24th को आएगी और 24th, 25th, 26th आपका anyway interviews है. So that does not leave us with a lot of time to help you with that. But at least मैं वो आपको module available करा दूंगा basis of which you can start preparing yourself. शॉर्टलिस्ट आएगा आपका 10th और 12th स्कोर्स के बेसिस पे. प्लीज़ डोंट आस्क मी कितना स्कोर आना चाहिए जिसके बाद सिलेक्शन हो जाए नहीं हो जाए, बिकॉज फर्स्ट ईयर है, किसी को कुछ नहीं पता है. बट इतना ज़्यादा हाई नहीं जाएगा, डोंट वरी. एंड अप्लाई करने में कोई बुराई नहीं है बिकॉज देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी एज सच. सो फ्री है. तो अगर आप ये सोच के अपने आप को सेल्फ रिजेक्ट करके उसके चक्कर में आप अप्लाई ना करें, ऐसा ना हो. आप प्लीज़ डेफिनेटली अप्लाई करें. लीव इट अप टू देम टू सेलेक्ट और रिजेक्ट यू. आपको ऑनलाइन इंटरव्यू होना चाहिए और ऑल्दो दे हैव नॉट मेंशन्ड बट इट इज़ प्रेटी ऑब्वियस. इफ दे आर टेलिंग यू ऑन 24th कि आपको 24th या 25th या 26th को इंटरव्यू, इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल feasible for you to fly down to a different place and give your interview. So that's how it should be like. एग्जैक्ट वेटेजेस अभी तक स्पेसिफाई नहीं करी हैं कि इंटरव्यू का इतना वेटेज है, 10th के मार्क्स का इतना वेटेज है, 12th के मार्क्स का इतना वेटेज है. दैट हैज़ नॉट बीन स्पेसिफाइड एज ऑफ नाउ. So that remains to be seen. That is at their discretion. But one thing is for sure, there is no entrance that is being considered or conducted because of course बहुत लेट हो गया है. कॉलेजेस ने ऑलरेडी अपने एडमिशन्स के अपने कॉलेजेस क्लासेस चालू कर दिए हैं. सो मे बी बिकॉज ऑफ दैट, मे बी बिकॉज ऑफ सर्टेन इशूज़, वो एंट्रेंस टेस्ट के स्कोर की तरफ डेफिनेटली जाना उन्हें चाहिए था. बट बिकॉज ऑफ द टाइम लिमिटेशन, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट प्रोग्राम थोड़ा डिले हुआ है, दे आर नॉट कंसिडरिंग एनी एंट्रेंस टेस्ट स्कोर्स. इट इज़ बेसिकली योर 10th स्कोर, 12th स्कोर, योर इंटरव्यू, एंड इंटरव्यू में आपका CV डेफिनेटली वो देखेंगे. सो द प्रोसेस इज बाउंड टू चेंज फॉर द सब्सिक्वेंट ईयर्स बिकॉज दिस ईयर इट इज़ अ काइंड ऑफ रश्ड. बट नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी होगा, वी विल हैव एन अपडेट रेडी फॉर दैट. In terms of exit options, as is the case with every program conforming to NEP, you have exit option available after at the end of first year, जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है. सेकंड ईयर में आई थिंक डिप्लोमा मिलता है. थर्ड ईयर में डिग्री मिलती है और फोर्थ ईयर में डिग्री विद ऑनर्स मिलता है. सो यू कैन एग्जिट आफ्टर थर्ड ईयर, विच इज़ a lot of people might consider that is going to grant you the degree of BMS. And अगर आप फोर्थ ईयर के बाद एग्जिट करते हैं, then you get the degree of BMS honors. And if in case आप चौथे ईयर तक you complete the program for 4 years and you're maintaining a CGPA of 8 and above, then in that case you get direct entry to IIM Sirmour's MBA without having to give CAT. But one thing that you need to understand, which is very important over here, is that they don't have any placement assistance available for early exit. So a lot of people, like जब ये प्रोग्राम आया भी था, the way it was working in my head was कि आप 4 साल आपको करने की ज़रूरत ही क्या है. आप एक जनरल BBA BMS की तरह आप इसे 3 साल करिए एंड उसके बाद आपको कैट लिखना है, आप कैट लिखिए. आपको वर्क एक्स लेना है, वर्क एक्स लीजिए. आपको फोर्थ ईयर करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है बिकॉज फोर्थ ईयर, एटलीस्ट इन माई अंडरस्टैंडिंग, इज़ अ वेरी नीश कंसेप्ट. As per NEP, fourth year is for honors and it is for people who want to continue and do research. Another reason why you could be doing fourth year is that you want to go for a master's abroad, and there are countries where you have to have a 4-year degree for you to be doing an MBA. So अगर वो एक requirement है तो actually वो 4 year की requirement नहीं होती, वो credit hours की होती है. So you will have to convert the credits in the course into hours, and whether it is meeting the requirement in 3 years or 4 years, that is something that you'll have to decide. But yeah, that is one thing that is one reason why a person might consider the fourth year. Otherwise आई डोंट पर्सनली थिंक एक BMS BBA प्रोग्राम को 3 साल से ज़्यादा होने की कोई ज़रूरत है. अभी तक 3 साल हो रहा था, चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था. आई डोंट थिंक अब आगे जाके भी उसको चेंज करना चाहिए एज सच. ऑफ कोर्स यू गिव एन ऑप्शन टू पीपल बट यू कीप इट फ्लेक्सिबल. दैट इज़ द होल पॉइंट अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राइट? बट बाय नॉट गिविंग प्लेसमेंट असिस्टेंस एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, आई थिंक दैट इज टेकिंग अवे दैट फ्लेक्सिबिलिटी एंड काइंड ऑफ पुशिंग पीपल टू गो फॉर द फोर्थ ईयर एज वेल, विच आई डोंट थिंक इज़ अ वेरी
वाइज डिसीजन, बिकॉज एज फार एज आई रिमेंबर अपनी एटलीस्ट जब मैंने वीडियो बनाया था, दे वर ओपन टू गिविंग प्लेसमेंट असिस्टेंट्स एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर एज वेल. नाउ उसके बाद अगर हम फ़ी की बात करते हैं, एज पर द वेबसाइट इट हैज़ बीन अपडेटेड टुडे, द फी फॉर टोटल फॉर 4 years इज गोइंग टू बी 22.73 lakhs. उसके साथ आपका एक कॉशन डिपॉजिट रहेगा विच आई थिंक शुड बी रिफंडेबल, अराउंड 20,000 होना चाहिए. आई एम अप्रॉक्सीमेटिंग दैट वैल्यू है. प्लस मेस का भी आपका लगभग 1.5 लाख का खर्चा आना चाहिए 4 साल का, बिकॉज इन IIM रोहतक द मेस फी इज समवेयर अराउंड 42-44,000 रुपीज़ पर एनम राइट नाउ. सो कंसिडरिंग दैट आई हैव एक्सट्रैपुलेटेड द डेटा एंड 6 महीने आप हो गए नहीं क्योंकि आप जाओगे अपने इंटरनेशनल एक्सचेंज के लिए, तो आई थिंक 1,50,000 के अराउंड होना चाहिए. साथ में इंटरनेशनल एक्सचेंज के लिए अगर आप जाते हो तो ऑफकोर्स उसकी फीस अलग से देनी पड़ती है, एंड दैट इज़ अ स्टैंडर्ड अक्रॉस ऑल IIMs. आप कहीं पे भी इंटरनेशनल एक्सचेंज करते हो उसकी एक फीस वगैरह, वीज़ा चार्ज, बोर्डिंग, लॉजिंग, वो सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ती है. नाउ इन टर्म्स ऑफ कोर्स फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, बट इट इज़ नॉट समथिंग विच इज़ आउट ऑफ द ऑर्डिनरी. आई थिंक सारे IIMs का एक बेंचमार्क है 5-6 लाख रुपए महीने का, साल का चार्ज करना है, एंड दैट इज़ वॉट दे आर ऑल्सो कन्फर्मिंग टू इट. सो इट्स नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर IIMs. So आई एम नॉट श्योर why students just expected IIM Sirmaur to offer this program at a lower cost, which I don't think was supposed to happen. So this fee structure is actually very predictable for me personally. Now coming to the placements. Placements is college ke across all baby IIMs is one of the lowest, with an average of 14.45 and a median of 13 lakhs per annum. If you compare it with IIM Bodh Gaya Jammu, they are doing better than this particular college. But I would say in the longer run, if you look at a horizon of the next 4, 5, 6 years, they all should be around the same figure only. सब में 1-2 लाख का फ़र्क हो सकता है, but roughly इसी रेंज के अराउंड ये लोग ये सारे कॉलेजेस बाउंस ऑफ करने चाहिए. So that is my personal prediction per se. But आप कैट में भी पूछेंगे, किसी से भी इंसान से पूछेंगे इन टर्म्स ऑफ MBA रैंकिंग एज वेल, तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता है इन टर्म्स ऑफ ऑल द बेबी IIMs. सिमिलरली सारे न्यू IIMs में भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आता. रांची, रोहतक दोनों के अपने प्रोज अपने कॉन्स है, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर वेरी सिमिलर इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे ऑफर. सो सेम इज़ द केस विद सिरमौर एंड बोध गया एंड जम्मू. नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन थिंग्स, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएंगी, बट इस प्रोग्राम को क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, और आपको करना चाहिए या नहीं, इसके आंसर देते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट द पॉजिटिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम. ऑफ कोर्स ज़्यादा IIMs आ रहे हैं विच आर ऑफरिंग IPM और BMS और एनी अदर डिग्री. IIM बैंगलोर की ऑनलाइन UG डिग्री है. सो इन दैट केस इफ मोर IIMs आर ओपनिंग अप देयर डोर्स फॉर UG एस्पिरेंट्स, दैट्स अ गुड थिंग, बिकॉज आपके पास सीट का जो ओवरऑल पूल होता है वो बढ़ जाता है. इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन दैन टेकिंग अ ड्रॉप ईयर. अगर आप सोच रहे थे ड्रॉप ईयर ले रहे हो लेने का और आपको IIM सिरमौर मिल जाता है, एंड इफ़ यू आर फाइन विद दैट, आई थिंक यू शुड जस्ट कंटिन्यू विद दैट एंड स्किप दैट थॉट ऑफ taking a drop in your head. That is my personal suggestion. Of course your mileage may vary, your aspirations and everything, your excellence, all of that is different and that is very personal to you. But I think अगर आपको IIM सिरमौर भी मिल जाता है तो in that case वो drop के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है. You can just continue over here. Third thing is of course you get the IIM tag. ऑल्दो लिक्विडेट होता जाता है. आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट कि इतने सारे कॉलेजेस, इतने सारे IIMs होते जा रहे हैं, सब IPM ऑफर कर रहे हैं, सब कोई UG प्रोग्राम कर रहे हैं. सो नाउ इट काइंड ऑफ बिकम्स अ स्टेज वेयर यू फील लाइक दे आर ओपनिंग अप दिस प्रोग्राम जस्ट टू मिल्क मनी, विच इज़ ऑल्सो पार्टली राइट. बट आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे स्टिल, बिकॉज यू आर स्टडिंग इन एन IIM, इट हैज़ एन इंटेंजिबल बेनिफिट. इतना ज़्यादा नहीं होता है बट होता नंदलेस है. क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी, बट ऑफ कोर्स इट ऑल कम्स एट अ कॉस्ट. If you are able to afford that, if you are able to sustain that financially, well and good. नहीं है, that is when the problem is, and that is where maybe you should be a little averse to this program, because I don't really recommend anybody to take any loan for this particular program. लोन अगर लेना है तो MBA के लिए लीजिए, बट ऐसे किसी अंडरग्रेड प्रोग्राम के लिए लेना मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, चाहे वो ये हो चाहे वो कोई और प्रोग्राम हो. इंटरनेशनल एक्सचेंज है, ऑफ कोर्स दैट इज अनदर पॉजिटिव विच आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन की वजह से आपको 2 कैट अटेम्प्ट मिलते हैं. दैट इज़ कंसिडरिंग कि आपका 8+ GPA चल रहा है. आप थर्ड ईयर के एंड में कैट लिखिए, आपको पता चल जाएगा कि मिल रहा है कॉलेज, नहीं मिल रहा है. ठीक है, सोचो नहीं मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 4th ईयर कंटिन्यू करो. 4th ईयर के एंड में भी आप कैट लिखो, फिर आपके पास एक और चांस मिल गया, जो कि IPM के केस में नहीं होता, बिकॉज वहाँ पर आप 3rd ईयर के एंड में लिखते हो, होता है तो ठीक है, वरना आप IPM के साथ कंटिन्यू करते हो. आप 3rd ईयर के एंड पे भी लिखोगे, 4th ईयर के एंड पे भी लिखोगे, मिलता है कोई अच्छा ठीक है, वरना अगर आपका 8+ GPA है तो यू कैन जस्ट कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. Final thing is the administration, at least as of now, has been approachable. I had a lot of doubts about this program. I put it forward in a LinkedIn message to the chairperson of this program, and he was very helpful, and he was able to answer all the questions in a very little amount of time. So
दैट जस्ट शोज़ कि एटलीस्ट एडमिनिस्ट्रेशन अब एटलीस्ट अभी के टाइम पे अप्रोचेबल है, दे आर लिस्निंग टू द फीडबैक्स, द क्वेरीज, एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट. सो दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज यूजुअली IIMs में आप किसी भी IIM में जाओ, दैट इज़ समथिंग दैट अ लॉट ऑफ IIMs really need to work on. So those were the positives about this program. Now talking about the negatives, and unfortunately there are quite a few of them. First of all, you would all agree this is a rushed program. I am not sure, हो सकता है कि प्रोग्राम जल्दी डिसाइड हो गया हो, फॉर्मुलेट हो गया हो, बट रेगुलेटरी अप्रूवल्स वगैरह लेने में टाइम लग गया हो, बट वट एवर द केस मे बी, दैट इज समथिंग दैट शुड हैव बिन a fact that delay should have been factored in, and प्रोग्राम थोड़ा जल्दी चालू होना चाहिए था. एंड अगर नहीं हो पा रहा था फॉर सम रीज़न, आप इसे अगले साल के लिए भी डिफर कर सकते थे. आपने इस साल चालू तो कर दिया, बट इन दैट केस द स्टूडेंट्स आर द वंस हु आर एक्चुअली गोइंग टू टेक अ हिट. I was also a part of the first batch of IPM at IIM Rohtak. I know how first batches are like. And in the case of at least मेरा IIM Rohtak में सब कुछ टाइम पे चालू हुआ था, तो वो सारी दिक्कतें नहीं थी. बिकॉज IIM सिरमौर का प्रोसेस इन इटसेल्फ इज डिलेड, तो वो सारी चीज़ें उसका रिपल इफेक्ट जो होएगा वो आपके प्रोग्राम के एटलीस्ट पहले 2-3 महीने में भी आएगा. नॉट अ डील ब्रेकर, बट समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली कंसिडर. इवन एप्लीकेशंस के लिए आप गूगल फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट वेरी प्रोफेशनल, बट अगैन बिकॉज इट इज़ रश्ड, दे हैड नो अदर वे टू डू इट. In terms of entrance test, there is no entrance test that they are considering. Of course, again because of the reason it is as a program is rushed, delayed, so entrance test koi nahi hai, and that is why the batch quality, the peer interaction that you'll have is going to suffer, because one of the reasons, one of the highlights why you go for an IPM program is the peer-to-peer participation, peer-to-peer learning. That is something जो यहाँ होगा. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल डम बच्चे बढ़ने वाले हैं. ऑफ कोर्स ऑल ऑफ यू आर स्मार्ट, 10th-12th में आपके नंबर आ रहे हैं, आप इंटरव्यू क्लियर कर रहे हो, यू गाइज आर ऑल्सो वेरी स्मार्ट. बट एक जो एडिशनल लेयर इंटरव्यू एंट्रेंस का होता है, दैट जस्ट फिनेसेस एंड मेक श्योर कि इट जस्ट आइडन्स आउट द प्रोसेस इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, कि ओनली द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स आर एक्चुअली गेटिंग इट. इस साल नहीं हो पाया बिकॉज द प्रोग्राम वॉज डिलेड. आई एम श्योर अगले साल से वो चीज़ इंप्लीमेंट होगी, बट एटलीस्ट फॉर दिस बैच दैट इज गोइंग टू बी अ कंसर्न. There is no permanent campus for BMS people, which might sound unfair to you guys कि भाई MBA वाले के लिए permanent campus है, हमारे लिए क्यों नहीं है. But I won't say it is necessarily a negative pointer, because देखो, अगर आप IFT काकीनाडा को कंसिडर करते हो, there it is a negative because social infrastructure नहीं बना हुआ है उनके temporary campus में. In the case of IIM Sirmaur, it is actually the temporary campus is Himachal Institute of Technology का the building they have acquired. I think that इंस्टीट्यूट हैज़ क्लोज्ड ओवर देयर, एंड उन्होंने उनका ही पूरा इंस्टीट्यूट जो है वो ले रखा है. तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आई एम अज्यूमिंग बना हुआ होगा, बिकॉज दैट इंस्टीट्यूट वॉज रनिंग फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम. सो इन दैट केस आई डोंट थिंक वो दिक्कत कोई आनी चाहिए सच, बट इट्स जस्ट दैट कि आप अभी ओल्ड कैंपस पे होगे, न्यू कैंपस पे नहीं होगे. कब होगे वो नहीं बताया है IIM सिरमौर ने अभी तक. प्लेसमेंट असिस्टेंस आफ्टर 3rd ईयर नहीं होएगा, दैट आई थिंक इज़ द मेन डील ब्रेकर फॉर मी. आपको 3rd ईयर के बाद प्लेसमेंट असिस्टेंस देना चाहिए था. तापमी भी देता है, बाकी काफ़ी कॉलेजेस हैं तो जो देते हैं, बिकॉज एज अ BBA एज अ BMS कोर्स स्टैंडर्ड जो होता है 3 साल का ही होता है. 4th ईयर NEP की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी लाया गया है, बट नाउ दैट फ्लेक्सिबिलिटी इज समथिंग विच इज़ बीइंग टर्न्ड इनटू अ कंपल्शन कि आप 4 साल करो, वरना हमारे प्लेसमेंट असिस्टेंस हम नहीं देंगे. सो आई थिंक दैट इज़ वन इशू, बिकॉज इन माई हेड बच्चे कह रहे थे फीस एक्सपेंसिव है, ये है वो है. इन माई हेड इट वॉज क्लियर कि भाई जितनी फीस बाकी IPMs की है उसकी भी इसकी भी उतनी है. आप आराम से वही 18-19 लाख रुपये दीजिए इन्हें, और उसके बाद बढ़िया से आप यहाँ से करिए अपना कोर्स करिए, और उसके बाद get some work ex, get in give CAT and get into a better college if you feel like you are deserving of that. और work ex नहीं भी लेना है तो आप CAT लिख के दीजिए. बट इन दैट केस जो वर्क एक्स वाले बच्चे होंगे दे आर गोइंग टू सफर, बिकॉज इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई असिस्टेंस नहीं मिलने वाला है आफ्टर 3rd ईयर. ऑफ कोर्स 4th ईयर के बाद मिलेगा, बट अगैन फिर 1 साल आपको वहाँ ज़्यादा देना पड़ेगा. तो I just feel like this is something that they can work on in the upcoming batches. 8 GPA for promotion to MBA. Now a lot of channels are going to cover it as कि हाँ भाई ये तो IPM प्रोग्राम ही है, क्योंकि अगर आप बाकी IPMs में भी देखते हो, मेरे IIM रोहतक में भी आप देखेंगे तो जितने बच्चे थे सारे बच्चे MBA में नहीं गए थे. कुछ बच्चे थे जिनकी CGPA 5.5 से कम थी, उन बच्चों को MBA में नहीं जाने दिया था, बिकॉज दैट इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट इन एवरी IIM कि आपको एक मिनिमम परसेंटेज, मिनिमम GPA आपको मीट करना पड़ेगा. द डिफरेंस इज़ कि बाकी IIMs में इट्स लाइक अ पासिंग क्राइटेरिया कि आपको 5.5 से ऊपर लेकर आना है तभी आपको MBA में एडमिशन मिलेगा. यहाँ वो 5.5 नहीं, यहाँ वो 8 है. And getting an 8 GPA is not a piece of cake. Don't consider it to be similar to your 10th and 12th. यहाँ relative grading होती है. 8 GPA से ऊपर टॉप 20% ऑफ द बैच को ही आता है. टॉप 20% ऑफ द बैच में से जितने बच्चे होते हैं उनमें 60-70% बच्चों को ऑलरेडी कोई बेटर IIM मिल रहा होता, तो एनीवे दे वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग विद दिस पर्टिकुलर कोर्स. तो रिमेनिंग 20-30% पीपल ऑफ द 20% पीपल हु हैव अ GPA हायर देन 8 आर गोइंग टू एक्चुअली बेनिफिट फ्रॉम दिस, एंड दिस इज नॉट फॉर एवरीबडी. इवन अगर आप मेरा एग्जाम्पल लें, मेरा GPA 7 के लाइन में है,
स्वप्निल का एग्जाम्पल है, उसका भी 7 के लाइन में है. सो इन दैट केस मेंटेनिंग दैट 8+ GPA इज एक्चुअली टफ, especially in an IIM, because यहाँ relative grading होती है. So it is not something that is to be confused with an IPM program. 4+2 years होगा in the case of IPM program. It's not a 5-year program. If in case you do decide to continue with IIM Sirmour, it is going to be a 6-year program. And personally, if you ask me, 6 year is a bit too much in the same institute, because when you are in the same place for that long time, then in that case every additional year that you are putting into that institute, you're not getting the same level of marginal utility out of it, right? The marginal utility keeps on decreasing with every additional year that you spend over there. So in that case, a little too stretched in terms of the program. I think there should have been a provision कि 3 साल के बाद डायरेक्टली बंदा कैट नहीं, डायरेक्टली आप IIM Sirmour के MBA में कंटिन्यू करें, बिकॉज at the end of the day, there will be slight overlap in terms of syllabus anyway in BBA and BMS and MBA. तो क्यों ना उस overlap को हटा के just make this program a 3+2 year rather than a 4+2. So that is another concern that I have with it. Of course, फाइनल थिंग जो काफ़ी बच्चे बात कर भी रहे हैं कि प्रोग्राम की जो फ़ी है वो काफ़ी हाई नहीं है एक्चुअली, इट इज़ एट पार विद अदर IIMs. तो आप सोच रहे हैं कि ये प्रोग्राम 6-7 लाख में आएगा, तो यू आर वेरी रॉन्ग. बिकॉज एक बात समझिए, आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं तो आप हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी, सब कुछ मिला के 2-2.5 लाख रुपये साल का तो आप वैसे भी दे रहे होते हो. सो इन दैट केस फॉर अ 3-year प्रोग्राम, और दिस इज़ अ 4-year प्रोग्राम, तो वो 7 से 10 लाख रुपए तो आपका खर्चा फिक्स है ही. 8 से 10 लाख रुपए खर्चा फिक्स है ही. उसके ऊपर आपको अच्छी फैकल्टी मिल रही है, अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, उसके आप 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा मान लीजिए. सो मेरे हिसाब से एक IPM की आइडियल जो फ़ी होनी चाहिए वो 4 से 5 लाख के बीच होनी चाहिए. 4 से 4.5 एक्चुअली, डिपेंडिंग ऑन द लेवल, द स्टैचर एंड ऑल्सो द प्लेसमेंट्स, because that is what ultimately sells. So in that case, that is what according to me is a fair fee for this particular program, because government की तरफ से कोई assistance नहीं मिलता है. Government only helps you set up the campus initially. बाद में जितना भी day-to-day operation होता है, that the institute has to manage on its own. So it's very different from a centrally funded university. So they cannot subsidize your education, but at least they can make it a little more affordable than what it actually is right now. That is of course missing over here. And the problem right now in the case of IIM Sirmour is, चलो फीस तो इसकी बाकी IIMs के बराबर ही है, बट क्योंकि यहाँ 3 साल की जगह 4 साल का BMS कर रहे हो, तो वो फीस अचानक से 33% से इंक्रीज़ हो जाती है, राइट? जहाँ आप IIM जम्मू, बोधगया, IIM रोहतक, IIM इंदौर, IIM रांची से अपना अंडरग्रेड करते तो शायद आप 18 लाख रुपए खर्च कर रहे होते. यहाँ पर वही कॉस्ट 24.5 लाख तक जाता है, इंक्लूडिंग द मेस एंड द मेस कॉशन डिपॉजिट, बिकॉज वो चीज़ तो मैंडेटरी है. आई एम नॉट इंक्लूडिंग द इंटरनेशनल एक्सचेंज ओवर हियर. सो दैट अगेन देन बिकम्स अ प्रॉब्लम. नाउ इन टर्म्स ऑफ फाइनल वर्डिक्ट, very important, if in case you're already in any of the IIMs, if you're already in IFT Kakinada, आज DU का रिजल्ट आया है, congratulations who got in. DU नॉर्थ कैंपस मिल रहा है, DU साउथ कैंपस मिल रहा है, NMIMS सिम्बायोसिस क्राइस्ट के मेन कैंपस में आप हो, कोई और रेप्यूटेड कॉलेज में हो, सेंट जेवियर्स हो गया, वहाँ पर रहो, कोई दिक्कत नहीं है चेंज करने की. अच्छे कॉलेजेस हैं, एंड मे बी IIM give some time to IIM Sirmour to really prove its worth. So we'll decide again next year, where does it stand. But right now, because it's their first batch, I think it's better to trust the colleges which have already been running for a long time. They have a legacy of their own. So in that case वहाँ आप जाइए. But even in the case of colleges like Nirma, Tapmi, Nalsar, जहाँ शायद मैं कह सकता था कि you can actually put Sirmour above all these colleges, at least for this year. I would ask you कि अगर आप ऑलरेडी उन कॉलेजेस में हैं, then just continue over there, because अगर आप वहाँ से आप छोड़ते हैं सीट अपनी, तो आपको फुल रिफंड तो नहीं मिलेगा. क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई होंगी, सो रिफंड अमाउंट कम होगा, रिफंड बाद में आएगा. तो इतने झंझट में पड़ना, ऑलरेडी आप फीस यहाँ पर 22, 23, 24 लाख दे रहे हो, उसके ऊपर यहाँ से 5 से रिफंड भी नहीं मिलेगा. तो इन दैट केस टोटल मिला के आई डोंट थिंक इट बिकम्स अ वेरी फाइनेंशियली वायबल ऑप्शन. इन दैट केस इवन फॉर दोज कॉलेजेस इट्स बेटर दैट एटलीस्ट फॉर दिस टाइम यू डोंट स्विच. नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए मेरी एडवाइस डिफरेंट होगी, बिकॉज मेरे पास ज़्यादा डेटा होगा. IIM Sirmour विल ऑल्सो स्मूथ आउट ऑल द प्रॉब्लम्स एंड शॉर्टकमिंग्स ऑफ दिस प्रोग्राम. एंट्रेंस टेस्ट होगा, चाहे वो IPMAT इंदौर का स्कोर लें, रोहतक का लें, या JIPMAT लें, या खुद का लें, तो वो सारी चीज़ें हो जाएंगी. प्रोग्राम अपने आप को थोड़ा सा शेप अप कर लेगा, स्टेबलाइज हो जाएगा. इन दैट केस दीज रैंकिंग्स, दीज वर्डिक्ट्स आर बाउंड टू चेंज नेक्स्ट ईयर, बट फॉर दिस ईयर स्टूडेंट्स दिस इज़ वॉट आई पर्सनली फील लाइक. साथ ही में काफ़ी बच्चे बोलेंगे कि भैया IIM बैंगलोर का BBA करें ऑनलाइन वाला, या ये IIM Sirmour का BMS करें. इट इज़ नॉट एन एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन. वन इज़ एन ऑनलाइन डिग्री, अदर वन इज़ अ BMS ऑफलाइन डिग्री. सो आई कैन नॉट रियली कंपेयर बोथ ऑफ देम राइट नाउ, बट आई फील लाइक गिवन दैट वहाँ पर एंट्रेंस हुआ है, यहाँ पर इस साल एंट्रेंस नहीं हुआ है,
the quality of people who are actually getting into IIM Bangalore's DBA is going to be slightly better than IIM Sirmaur. And basis of that, I would be slightly tilted towards IIM Bangalore's BBA, although it is focused more on entrepreneurship. So if you don't feel like you're the right target audience, so anyway, I don't think you should be spending that much amount of money on an online program, because for an online program, 4.5 lakhs is a lot of money. So that is there, but yeah, keep that thing in mind if in case you are deciding between both of them. Other than that, if in case you have any questions, I think I've covered most of it. If in case you have any questions, you can leave it down in the comment section. If somebody from the administration is watching this video, my suggestions to you: have placement assistance in the third year as well. Please have entrance, please iron out everything which is a problem right now, because of the fact that the program has started a little late, and baki jitne bhi negatives hain, all the things which can be worked on, please do work on that. I really want IIM Sirmaur to succeed and have a good option for students right after 12th to target in terms of the IIMs. That's about it. If in case you have any queries, you can leave it down in the comment section. I'll see you in another one. Till then, stay safe, take care, all the very best, and bye-bye.